Next, we'll be talking about bond enthalpies. Bond enthalpies क्या होती हैं? The amount of energy required to break one mole of a specific covalent bond in the gas phase is called the bond dissociation energy. Bond dissociation energy is usually just simplified to bond energy or bond enthalpy. तीन चार नाम है इसके, हम bond energy कहते हैं. In symbols, the type of bond broken is written after E in a bracket. जैसे कि bond energy of hydrogen, कि मेरा जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसकी ऐसे बॉन्ड्स हैं, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, हम इसको ई डाल दैट द ई ऑफ एच एच इज वॉट एवर, ठीक है ना, एक्स कंसिडर कर लेते हैं, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन atoms. Average bond energies are affected by other atoms in the molecule. Therefore, an average of a number of the same type of bond but in the different environments is calculated. This bond energy is known as the average bond energy. Since bond energies cannot be determined directly, enthalpy cycles are used to calculate the average bond energy. पहले आप atomization निकालें, then check कि उस atom या molecule के अंदर कितने bonds थे, use the coefficient और उसको divide कर देंगे जब आप उस number से, तो आपके पास one bond की energy आ जाएगी. So look at this. अब H2O है. H2O के अंदर मेरे पास how many OH bonds are present? One और ये two. Two OH bonds are present. ठीक है ना, एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH वाटर. या अगर मैं कहता हूँ CH3OH के अंदर कितने बॉन्ड है, एक आपके पास CO का है, ठीक है, फिर मेरे पास एक OH भी है, ठीक है, फिर मेरे पास क्या है CH3, C और H के मेरे पास कितने बॉन्ड है, CH3 है, तो ये इंटू थ्री हो जाएंगे. द टू एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जीज आर नॉट द सेम. अब कभी कभार क्या होता है, द OH इन वाटर एंड द OH इन मेथनॉल, दोनों में OH आ रहा है, वो डिफरेंट हो सकती है, तो उनकी अगर हम कैलकुलेट करेंगे मिला के, तो उसको हम नाम देंगे एवरेज बॉन्ड एनर्जी. So the two exact bond energies are not the same. It takes more energy to break the OH bond in water than in methanol, as in the methanol, the oxygen is connected to a C atom rather than another H atom. So the bond energies are affected by other atoms in the molecule. So average bond and enthalpies are listed in the data tables. A simple formula है for calculating the enthalpy change from bond energies. Bond energies are used to form the delta H R theta of a reaction. ये जो theta होता है इसका क्या मतलब होता है, इस साइन का जो मतलब है, ये रिमेंबर, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. द फॉर्मूला इज डेल्टा एच आर इज इक्वल टू बॉन्ड ब्रेकिंग प्लस बॉन्ड फॉर्मिंग. तो ये देखें, कैलकुलेटिंग द एंथैल्पी चेंज इन द हेबर्स प्रोसेस. हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, 1 and 2 combined with 3H2 to form 2NH3. बहुत कॉमन इक्वेशन है, used in many examples. So calculate the change in enthalpy of the reaction for the Haber's process producing ammonia from hydrogen and nitrogen. Reactants में you have nitrogen and hydrogen, and in products you have ammonia. The relevant bond energies are also given in the table below, as you can see over here. Nitrogen ट्रिपल बॉन्ड एन किट क्या होते हैं, अब रिमेंबर नाइट्रोजन इज नॉट एन सिंगल बॉन्ड एन, ये भी गलत है. स्टूडेंट्स आल्सो डू एन डबल बॉन्ड एन, ये भी गलत है. आप कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे तो ट्रिपल, थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन नाइट्रोजन. नाइट्रोजन हमेशा एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है. फिर आपके पास एच एच का सिंगल बॉन्ड की एनर्जी और एन एच की भी आपको सिंगल बॉन्ड की एनर्जी गिवन है. अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन लिखूं, लुक एट दिस, N2 plus 3H2 forms 2NH3. ठीक है, अब N2 का क्या मतलब है, कि मेरे पास जो N ट्रिपल बॉन्ड N की एनर्जी है दैट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2. नहीं, ये आपके पास मल्टीप्लाई 1 ही होगा. व्हाई? बिकॉज कैन यू सी एनी कोएफिशिएंट ओवर हियर? नो. आपके पास रेशियो क्या है, 1:3:2. अच्छा, प्लस आप क्या करेंगे इसमें, एच एच, would this be multiplied with any number? Is there a coefficient? Yes, there is. Multiplied by 3. ये आपके पास हो गए reactants. If I come to the product, product मेरे पास क्या है, NH3. कितने, 2NH3. अब जो आपके पास NH के बॉन्ड हैं वो कितने हैं, अगर मैं NH3 का मॉलिक्यूल बनाऊं, दिस इज NH3. हाउ मेनी NH bonds do I have? 3 NH bonds है मेरे पास. तो मेरे पास 3 NH bonds हैं, plus I would have to multiply it all by the coefficient, that is 2. So remember to separate the bonds of the reactants and the products first. और फिर आपने उस हिसाब से ये सारी वैल्यूज लिखनी है. So step number 1 is
यूज द इक्वेशन टू वर्क आउट द बॉन्ड्स ब्रोकन एंड फॉर्म। एक तरफ आपके पास बॉन्ड ब्रेकिंग आ रही है, एक तरफ बॉन्ड मेकिंग आ रही है, एंड सेट आउट द कैलकुलेशन एज अ बैलेंस शीट एज शोन बिलो। मैंने देख लिया कि मेरे पास 1 NN थे, 3 HH के बॉन्ड्स थे, तो मैंने क्या किया, 1 into 945 और 3 into 436। हम इनके नीचे लिख लेते हैं। 1 and 2 क्या था, 945 प्लस 3 into 436। ठीक है, इसने आपके पास क्या बनाया था, 2NH3, 2 और ये 3, तो टोटल आपके पास 6 NH बॉन्ड्स हो गए ना। 1 NH3, वन मॉलिक्यूल of NH3 contains 1 2 3। तो अगर मैं 2 NH3 molecules ले लूंगा तो टोटल आई वुड हैव 6 NH bonds। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय एक NH बॉन्ड की एनर्जी क्या थी, 391। आई वुड मल्टीप्लाई 6 विद 391। ठीक है, अब आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल जो रिएक्टेंट थे दैट वर प्लस 2253। इफ आई ओनली कैलकुलेट द रिएक्टेंट्स फर्स्ट, दैट वर 2253। एंड इफ आई नाउ कैलकुलेट द प्रोडक्ट 6 into 391, वो आ गए थे -2346। तो क्या कि नोट वैल्यूज फॉर द बॉन्ड्स ब्रोकन आर पॉजिटिव। वाई? आपको मैंने एक चीज सिखाई थी, बेंड। बेंड क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ब्रेकिंग इज एंडो, मतलब कि मेकिंग इज ऑलवेज एक्सो, ये याद रखें। तो जो आपके पास रिएक्टेंट्स होंगे फॉर द बॉन्ड्स ब्रोकन, दे वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव बिकॉज दे आर एंडोथर्मिक। ये देखें, रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही थी, इट इज गिवन इन पॉजिटिव। फिर आपके पास जो बॉन्ड्स फॉर्म थे, बॉन्ड मेकिंग इज एक्सो ऑलवेज, तो वो क्या है, नेगेटिव में दिया हुआ है आपको, विच इज एक्सोथर्मिक। नाउ कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस। आप क्या करेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर बॉन्ड ब्रोकन क्या थी, 2253, नो, प्लस 2253, बिकॉज बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडो, प्लस आप करेंगे एक्सो, वो आपके पास माइनस में आएगा, जो भी आपके पास एक्सो, बिकॉज बॉन्ड मेकिंग इज ऑलवेज एक्सो। तो 2346 नहीं, -2346। तो क्या हो जाएगा बेसिकली, +2253 प्लस एक्सोथर्मिक वाले बॉन्ड मेकिंग वाली जो एनर्जी थी 6 into NH बॉन्ड्स वाली, दैट वुड बी रिटन एज -2346। सो द आंसर यू वुड हैव इज -93 kJ per mole। Got it? Yes, sir. All right.